when you attempt to tell a story, no matter how experienced a filmmaker you are, जब वो खुद की story होती है, and you know when you're trying to put the pieces together, it's a lot tougher because there is no real script, or you keep going back to the script. Do I want to say this? Do I want to say that? But I love docudramas, docu-series, biopics. I've always loved these things. It helps me learn so much more. And I think India has learnt a lot with the Roshans. Rakesh ji, thank you so much for joining us. Shashi ji, thank you so much for joining us. Pleasure. And that last line of mine is extremely important. I'm 45. And I am appalled at the fact that we did not know so much about your father. We knew the music. But, you know, I feel, and this was a general discussion everywhere. I was reading online also. We just did not know enough. I mean, our assumption was that it was the brothers and that we had Hrithik, and that was the lineage. Yes. So, you know, when you were making this also and you were doing the discussions, was this also a very important part to bring to light this entire process of, you know, bringing your father's name out so that we all know? Thanks for asking this question, Guruji. Let me initiate the earlier part of your question. Ji. Is that I'm happy that you are sensitive about this, Yes. that you do not know as a 45-year-old man so much about the worst part is that none of our you know, cinema greats Yeah, have anything on audio visual. true. You think of Lata ji, you think of Mohammad Rafi, think of Dilip Kumar, think of Mehboob, Kishore Asif, Kumar. Kishore Kumar. yeah. You name, Yes. you have no record. Yes. And coming generations, slowly, besides their cinema Yeah. or besides their songs, probably won't even know. Absolutely. So I think Roshans have filled up that huge gap, Absolutely. which has been there for, I think, 60 years, 70 years, very beautifully, because the story has come out, you know, fulfilling every aspect of that. Correct. Absolutely. Now Guruji can speak. नहीं मैं तो वही बता रहा था कि आप ही बता दो. नहीं सर आप बिकॉज एवरी वर्ड दैट यू वर सेइंग आल्सो बिकॉज मैं जब ये शोज भी देखता हूँ, मैं जब एपिसोड्स भी देखता हूँ, घुस जाता हूँ. एक तो मैं बोलना चाहता हूँ सर, मैं भी एक फादर ऑफ 2 हूँ, और जो आपकी एक लाइन थी वहाँ पे कि मुझे इतने पैसे मिल रहे थे और मुझे जाना था, माई सेकेंड चाइल्ड वॉज बीइंग डिलीवर्ड, तो द डॉक्टर आस्क्ड मी 3-4 घंटे हैं, तुम्हें अपना जो इवेंट करना है वो जल्दी से इवेंट करके वापस आ जाओ, एंड देन वी विल डू द सी सेक्शन. और आई हैड टीयर्स इन माय आईज व्हेन आई वाज लिसनिंग टू यू एज वेल सर. सो इट वाज अ वेरी इट वाज an emotional moment, every word that you were saying, and you know I respect so much. My respect for you has gone up. We knew so much of you, but a lot of the other struggles we did not know, and sometimes you assume कि जो बड़े स्टार्स होते हैं और जिनकी खूबसूरत ज़िंदगी होती है, दर्द होता है, लेकिन ये भी बहुत बहुत सामने आया सर. हाँ, सही कहा. ये शुरुआत रोशंस की ऐसी हुई जी. कि कुछ 8-10 साल पहले एक इक्विपमेंट ट्रांजिस्टर जैसा निकला जिसमें कुछ 5-10 हज़ार गाने थे, और उसमें सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के गाने थे, सारे सिंगर्स के गाने थे, फिल्म मेकर्स के, सबके थे. तो मैं सुनता था काफ़ी. एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपने फादर के गाने सुनूं, रोशन जी के. तो मैंने रोशन का नाम ढूंढ रहा था, उसमें था नहीं, एक भी गाना नहीं था. तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ. तो उस वक्त से मैं बहुत परेशान था कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने फादर के लिए, कैसे उनको लोगों को याद दिलाऊं कि रोशन जी भी एक संगीतकार थे जिन्होंने बहुत अच्छे कंपोजिशंस दी हैं. तो शशि के साथ एक दिन ऐसी बातें हो रही थी, बिकॉज ही इज़ गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ म्यूज़िक. तो मैंने शशि ऐसी बात है. तो ही केम आउट वेरी सून विद अ आंसर, व्हाई डिड यू मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन हिम. आई सेड यार दैट्स अ गुड आइडिया. फिर 2-3 दिन के बाद मैंने शशि को बोला, शशि एक काम करते हैं, शायद आज की जनरेशन विल नॉट कनेक्ट विद टू माई फादर, लेट्स कनेक्ट हिम थ्रू अस. Nice. So let's make the documentary on all the 3 Roshans, Right. with me, with Rajesh and Hrithik, so that when people come to see that, they'll see my father's work also. Yes. And that's what has happened. Whatever messages I'm getting today, Ji. they're talking less about me, my Yes, of brother course, of and course. Hrithik, Yes. but they're talking so much about my father. Yeah. So I'm so very happy. But also, sir, because we follow all your lives so closely also.
तो यहाँ जब मैं 45 हूँ तो मैंने तो बहुत क्लोजली फॉलो किया है, लेकिन आई डू रियलाइज ऑल्सो द इनॉर्मिटी ऑफ मेकिंग अ शो लाइक दिस। अब इतने साल का, और बहुत मॉन्यूमेंटल पीक्स हैं, राकेश साहब के हैं, राजेश जी के हैं, ऋतिक के तो ऑफ कोर्स हैं। हाउ डू पुट इट इन टुगेदर? बिकॉज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर एक फिल्म मेकर के लिए भी, 1 घंटे के अंदर सारे एपिसोड हैं सारे, ये बड़ा मुश्किल होता है। पिक्चर 2 घंटे की नहीं बन पाती है, जी। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्या रखें क्या नहीं रखें। तो यहाँ पे इज देयर 3 अदर ऑप्शंस दैट कैन बी मेड, जो Absolutely. सामान छोड़ा हुआ है? 100 घंटे का और है। Wow. But are you happy with what you No, made, or of was there course. an alternative also that you said कि ये भी जाना चाहिए था? सी देखिए क्या है, जब हम इसको बना रहे थे तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये। और चैलेंज ये भी था कि जो भी शख्सियत इस शो पे आई वो अपने आप में बहुत बड़ी थी, बिल्कुल। काम में बहुत बड़ी थी, और जिस तरह की बातें उन्होंने कही दिल से, वो इतनी लगती थी कि हमको लगता था ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, इसको भी रखना चाहिए, उसको भी रखना चाहिए। तो अगर आपको मैं बताऊं कि हमने जब पहला कट किया तो मैंने और एडिटर ने बैठ के, तो कोई 1.5 घंटे का था, बिल्कुल 1.5 घंटे का था, और मेरे उससे बहस हुई। मैंने कहा ये सारा रखेंगे। बोली नहीं, नेटफ्लिक्स नहीं करेगा या जो भी प्लेटफॉर्म का नहीं करेगा। मैंने कहा यार हम लड़ाई करेंगे, क्या करेंगे इसके अंदर, इसमें क्या काट सकता हूँ मैं? तो शी से नहीं 1.5 तो बहुत बोरिंग नहीं हो जाएगा ये नहीं। मैंने कहा यार मैं रो रहा हूँ, तुम रो रही हो, क्या बात कर रही हो? लेकिन फिर धीरे धीरे हमको लगा कि नहीं, आई थिंक इमोशंस पे काबू रखें हम। इतना अच्छा मटेरियल है लेकिन हमें थोड़ा तो इट वाज अ ह्यूज चैलेंज, बट येस वी हैव लॉट ऑफ मटेरियल, हु नोज। Of course, I think there should be part 2 also. But Rakesh ji, your story is just touched me so much more. I've met Hrithik a lot, of course, over the years, and for us, he's always been. So Hrithik doesn't seem like a human sometimes to us, like most people in the industry. But this is where I saw your humane side also. I always saw you standing, whenever if you saw some Bollywood trailers or over the years, whether I had seen you, आपने एक बहुत बढ़िया मास्क भी डाल रखा है. Was this always the case because of how your childhood was a tough childhood? And everything was tough. Was that the reason why this mask always remained and maybe still continues now as well? Mask nahi, but I am not a person who can pom-pom about my work. I don't know how to do it, and I feel it I feel very shy about it. यहाँ तक कि मेरे ऑफिस में आप आएंगे तो देखेंगे बहुत ट्रॉफीज़ पड़े हैं जी. और मैं वो ट्रॉफीज़ को देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि एक के लिए भी मैंने लॉबी नहीं किया था. Yes. Correct. तो ये खुशी अलग खुशी होती है. Over the years also when you see, ये देखने के बाद कई बार होता है ना, जब हम एल्बम देख रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी हमारी आंखों के सामने जा रही होती है, जब आपने देखा ये, तो how was the experience for you? Were you watching it phase by phase या आपने सिर्फ थोड़ा देखा और फिर फिनाले देखा? No, I saw it phase by phase in every 2 weeks I used to see. जी. But when we finished the whole thing, then I sat and saw the whole episode, all the 4 episodes together. Though even I had tears in my eyes. But then it gave me immense pleasure thinking that really we have done so much to the industry. Yes. My father, my brother, myself, Hrithik. हम लोगों ने इतना कुछ काम किया है, हमें पता ही नहीं. 77 years हो गए. My God. Shashi ji, you're a historian, let's put it that way. All of us, I think, eventually end up doing that. Were you also amazed जब ये digging चल रहा था और ये जब करे जा रहे थे कि कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है? क्या होता है कि it's like falling in love. So you like the person, as you keep coming closer, there's something you keep finding more. And actually we fell in love with each other. I fell in love with the family. And इनके दुख दर्द सब अपने से लगते थे. दुख भी बहुत है, मतलब कि I was overwhelmed many times also सोचते हुए, because मैंने कहा ये तो बस दिखाया जा रहा है, सोचो एक्चुअलिटी में कितना हुआ होगा. कई बार ऐसा हुआ कि हम कैमरे पे बात करते होते थे और बात करते करते गुड्डू जी की आंखों में पानी आना शुरू होता था और हम ये चौक हो जाते थे, मैं चौक हो जाता था, तो कट हो जाता था, बैठ जाते थे हम. 2 मिनट के बाद चलो अभी आगे करते, चलिए अभी सो दिस हैपेंड मैनी टाइम्स. सो वी ट्रैवल्ड दिस जर्नी टुगेदर, इमोशनल जर्नी टुगेदर. और खुशी की बात ये है कि ये जज्बा और ये इमोशन जो है अब ऑडियंस फील कर रही है. बिल्कुल. जो भी देख रहा है वो
मतलब लोग ये कह रहे हैं कि हम शुरू सोचा था ये चलो 20 मिनट देखेंगे फिर प्लान करेंगे वीकेंड पे, हम उठे ही नहीं, 3 बजे तक रात तक देखा, 2 बजे रात तक देखा, एक उसमें गो में देखा। 99.9% पीपल हु हैव कॉन्टेक्टेड अस सेड कि हमने 1 गो में देखा। मैंने भी सो Yes. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है बिल्कुल। कि कहीं लोगों को इतना उसमें इंटरेस्ट आया, और सेकेंडली सब ने कहा कि यहाँ मेरे आंसू आए, यहाँ मैं इंस्पायर हुआ, यहाँ मैंने कहा वाह। तो अगर सर मुझे तो बहुत वैलिडेशन मिल गई कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, आपको सर देख के, आपने जो एक लाइन बोली थी ना कि आई विल नॉट डाई until आई प्रूव माई सेल्फ, जैसे आपने बोला, ये कौन सी फिल्म जो बहुत सुपर हिट हो गई थी उस पर कब ये तब खत्म हुआ जब आपका एक बहुत बड़ा फिल्म एज ए डायरेक्टर सुपर हिट हो गई थी? डिड यू से कि नाउ आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ टू द वर्ल्ड? No, no, no. I still have to prove. नो सर, आई मीन I still have to prove. सो इसकी एक और लाइन थी जी जो नहीं है इसमें, लेकिन वो ऋतिक ने कही। सो ही सेज माय फादर इज अ वॉरियर, आपने सुना जी वो, जी एंड माय फादर हैज ऑलवेज बीन, ही इज रेडी फॉर अ वॉर, या बट देन ही सेड, बट नाउ आई टेल माय फादर, डैड द वॉर इज ओवर एंड यू हैव वन इट, एब्सोल्युटली. बट ही डज नॉट बिलीव इन इट। Don't Well, you want to rest? I mean, one is not saying that. I mean, of course, we are looking forward to all the work that you continue doing. But कभी कभार जैसे वो फिल्मों में दिखाते ना, अब मैं पैर ऊपर रख के समुंदर को देखकर ऐसे बैठ जाऊं, ये मन नहीं करता सर? नहीं नहीं, मुझे अब ये लगता ही नहीं कि मैंने कुछ काम किया है और इतना नाम हुआ है। ये जब हम इंटरव्यू भी जब ले रहे थे शशि, आई फॉरगॉट दैट आई एम राकेश रोशन. आई बिकेम अ कॉमन मैन एंड आई टोल्ड माई स्टोरी. आई थिंक दैट्स व्हाई पीपल आर कनेक्टिंग विद मी. मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मैं राकेश रोशन बन गया उसके बाद. मैं अपनी कहानी सुना रहा था, अपनी स्ट्रगल सुना रहा था, ताकि आने वाले जनरेशन, जो देखने वाले जनरेशन हैं, वो समझें कि एवरीथिंग इज़ नॉट रोजी व्हाट वी सी. Absolutely. देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, द सेम स्ट्रगल व्हाट वी फेस इन द फैमिली. But they also have realized one thing कि गुड लुक्स बहुत इजीली आ गए थे. आपके जो बचपन के फोटोग्राफ्स लोग देख रहे थे, इट वाज ब्यूटीफुल. वाज इट एंजॉयबल लुकिंग? पुराने फोटोग्राफ्स को भी देखकर ऐसे मजा आ रहा था सर आपको? वो तो मेरे जैसे ही- राजेश जी बोल रहे थे कि 2 डिपार्टमेंट अलग थे, गर्लफ्रेंड्स वाले डिपार्टमेंट इन दोनों का थोड़ा अलग था. सम ऑफ दोस टिडबिट्स आर फैंटास्टिक एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग, वर यू लुकिंग एट दिस सेइंग यार ये क्या दिखा रही हो सबको, ये अभी अब तो ये पोस्टेरिटी के लिए रह चुका है. डिड यू एंजॉय दोस मोमेंट्स एज वेल? Yes, I enjoyed. I said कि ये सच्चाई है, ये सच कह रहे हैं, जी, तो why should I say no, don't put this. absolutely. I think it's wonderful. You have a lot of industry people that will say a lot of things also, that will praise you. When you make a show like this also, there will also be people बहुत कुछ छोड़ दिया, बहुत कुछ हम और भी देखना चाहते थे. Would you say that we should make it like this, so it doesn't have to be everyone's perspective? This is my perspective. ये हमारी perspective है, तो ये हम दिखाना चाहते हैं. Closing words on that. See, क्या, you cannot make anything with the democratic Correct. process, because creativity doesn't work like that. Yeah. You can't have कि 200 आदमियों ने कहा ये कहानी बना दो तो यही बना दो. It has to touch you somewhere. You have to be convinced about that, and then you have to go by your conviction. And it can go wrong. It can come out also something very good, and it can go absolutely wrong. And it happens all the time. So I was going with my conviction, and I was fearless. Fearless because I saw the material. So I said, this cannot go wrong. This human story cannot go wrong. My only concern was that it should be honest and it should be transparent. The moment I started shooting, I started having more and more confidence. I said, yes, we are on the right track. There is a transparency, there is a honesty, and the story is fabulous. So let's go with that. My only fear was, which I never told him also, though we used to be talking every second minute about things, कि मैंने कहा मैं खुद रोशन साहब का इतना बड़ा फ़ैन हूँ, ये इनके फादर हैं और इतना मतलब बड़ा नाम, वो इतना बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर, मैं कोई छोटी चीज़ बना दी तो मैं ज़िंदगी और अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा. आई हैव टू सी टू इट दैट हिज पोर्ट्रेयल आफ्टर हिज डेथ आई एम मेकिंग, द पीपल शुड से वाओ. They are. And I'm thankful to God Yes. that has happened, that everybody is saying that you people have revived Roshan Saab. Of course, 10,000 songs. If Roshan Saab's song was not there, अब आ जाएगा. And I think this was important. I think as film lovers, हम लोग हिस्ट्री बहुत पसंद करते हैं. और I think इतिहास के पन्नों में
जो लिखा जाना चाहिए था पहले, अब वो 2-3 नए चैप्टर ऐड कर दिए गए हैं. I absolutely loved it, sir. Thank you so much. Very happy Thank with you, it. thank you. Absolutely for giving this to Thank us you so because much. I think बहुत सारे लोग जो है ना, they go with an idea. You know, nowadays फिल्मों के लिए ऐसे होता है ना कि ये ऐसा होगा, ये वैसे होगा, आप खुद स्क्रिप्ट राइटर बन जाते हैं. यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं होता है. And that is the beauty. Every 15 minutes unfurls a new story, a new page, and you're just, you know, in amazement. I think we all seem to think also that we know Ritik's life also. And when you see that, you realize, my God, yeah, there's lots of things that he's also done. So yeah, go watch it. Trust me, there's no chance that you will not have a shed a year or two. I was crying like a little baby, sir. So thank you so much. I think filmmaker जब एक ऑडियंस को वो इमोशन एग्जैक्ट दे देता है, बस जीत गए आप. एंड यस सर, यू हैव प्रूव्ड इट टू एवरीवन. प्लीज डोंट बिल्ड मोर कास्टर्स, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा टू लुक देयर. टेक केयर एंड सी यू सून. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. Thank you. Thank you. Nice talking Very to you. nice interview. Very Nice talking.